हाय नमस्ते, दिस इज आदित्य अग्रवाल। आप सबका स्वागत है एक और सेशन में। आई वेलकम यू ऑल फॉर अनदर सेशन ऑफ नोमैक्स। इट इज 20 minute सेशन टू डिस्कस अबाउट life of realtor, ideal week of realtor. Today's topic is ideal week of a realtor. So very small points I've covered in this slide. I guess many of us are aware of what exactly we have to do. What are the success mantra, but it's my responsibility to share my experience with you. It's my responsibility to share what we have achieved, whatever we have done in my life as a realtor. Will share with you. I guess it will definitely help you in your career, in your daily working. So, what is ideal? Ideal is a very complicated word, I am sure. So, a basic definition, Google पे मिल जाएगी. So, ideal definition is the best possible way of achieving any target or completing any process. Simple. So, there are multiple definition of ideal as per the individual. हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं. But a basic definition is the best possible way of achieving any target or completing any process. So, what do realtor want to achieve? हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है? What we exact, why we are here, why we are into this industry? So what is the core purpose? I guess a very simple answer: sales, transactions, property deals, results. So we everybody needs this: sales, transactions, property deals, transactions, commissions, and many more. So मुझे लगता है कि ये common questions, common answer है कि why we are here, why we are into real estate, why we are a realtor. So for sales, what we have to do? For sales, what we need to do? Very simple. Many of us know. I'm again saying this. Key meetings. For all the sales, we only need to do meetings. More the meetings, more the results. ये basics are science है हमारी industry में. There is no rocket science of real estate or a real estate broking or real estate consultancy. The core mantra is meetings. Now, for meetings, what do we need? What we have to do? Discipline and process. Basic. Like if we want to have more and more meetings in our life, ज़्यादा से ज़्यादा meetings हमें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा clients हमें मिलना है. Only two things we have to follow. One is a process, and second is discipline in the process. That's it. So let's discuss the ideal process to have maximum meetings. ट्रस्ट मी, अगली स्लाइड आपको सरप्राइज करेगी. वन स्ट्रॉन्ग मंत्र, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, इसको ध्यान दीजिएगा. और जिसने इस लाइन को अपने लाइफ में ऐड कर दिया, आई एम श्योर आपको कभी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कस्टमर अपने आप आके आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा. प्लीज डोंट वर्क, प्लीज. बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. आप काम मत करिए. आप काम, इस इंडस्ट्री को काम की तरह, अपने एक प्रोफेशन की तरह, या मैं सोचता हूँ ना कि 9 to 6 का एक जॉब है, मुझे ये काम करना है, ऑफिस जाना है, ये मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये मेरे कोर फील्ड्स हैं, इसमें मुझे काम करना है. प्लीज डोंट वर्क. सिर्फ एक चीज करनी है, ओनली वन. जस्ट इंजॉय कम्युनिकेटिंग पीपल. दैट्स इट. जस्ट इंजॉय कम्युनिकेटिंग पीपल. कुछ भी नहीं है साइंस में, इस पूरी इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टेक्निकल हो. कोई मेडिकल लाइन नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है जहां पर आपको कोई टेक्निकल कोर फील्ड्स पे कोई एजुकेशन चाहिए. ओनली एंड ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज द कम्युनिकेशन विथ पीपल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट, यू शुड इंजॉय द कम्युनिकेशन. अगर आप उस कम्युनिकेशन को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप समझिएगा कि फिर वो काम कर रहे हैं. और अगर आप काम करेंगे तो फिर रिजल्ट काम के हिसाब से मिलेगा. बट इफ यू स्टार्ट इंजॉइंग communication with people, you will get the result which you think of. So, week workflow, कुछ बेसिक चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं. जैसे कि आपका जो दिन है, जो आपका पूरा वीक है, वो कम से कम 6 days का होना चाहिए. इफ यू कैन वर्क 7 days अ वीक, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड अ डे फॉर योर फैमिली, फॉर टू टेक रेस्ट. तो 6 working days मिनिमम होने चाहिए विद 10 hours, 10 working hours. Look, in our industry, I understand there is no time. Because we can meet customer at morning 8 o'clock. We can meet customer at maybe in the evening at maybe 9 o'clock. Maybe we can have dinner with the customer. Maybe we can have breakfast with the customer. So there is no time. But one discipline which we expect from us is to have minimum 10 hours working day. Minimum 10 hours. So if you're like, start your day
एट 9 o'clock शार्प, स्टार्ट योर डे एट 9 o'clock शार्प। ट्रस्ट मी, अगर ये आपने ऐड कर दिया, इसको मुझे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा था। आई स्टार्ट माई डे एट 10, 10:30, 11 o'clock, एंड देन मे बी, क्योंकि एंड टाइम नहीं है। एवरी डे रात को 9 या 10 या 11 बजते थे। सो आई थिंक कि ठीक है यार, अगर 10 बजे से भी काम शुरू होता है तो भी ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर 10, 12, 13 आवर्स अ डे। बट देन आई रियलाइज कि अगर मुझे अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, इंक्रीज करनी है, तो क्या करना होगा। एंड देन आई रियलाइज कि अगर मैं अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दूं तो, बट टाइम तो लिमिटेड है। तो वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप दिन को जल्दी शुरू कर सकते हैं, इफ यू कैन स्टार्ट योर डे मे बी 1 hour अहेड, लाइक अगर आप 10 बजे शुरू करते हैं, आप 9 बजे शुरू कर दीजिए। अगर आप 9:30 शुरू करते हैं, आधा घंटा बचा लीजिए। जस्ट 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 थिंक अबाउट इट कि 30 मिनट्स अगर आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया सुबह जल्दी काम शुरू करके, तो पूरे महीने के आपने लगभग 15 आवर्स ऐड कर दिए अपनी लाइफ में। एंड आई ऑलवेज कैलकुलेट लाइक दिस कि अगर एक महीने में से मैंने 10 लाख रुपीज की कमीशन का बिजनेस किया, सो आई ऑलवेज डिवाइड 10 लाख फ्रॉम नंबर ऑफ आवर्स आई वर्कड। आई ऑलवेज डू दिस। मुझे पता होता है कि मेरा 1 मिनट कितने रुपए का है। मुझे पता होता है कि 1 घंटा मेरी लाइफ में कितने रुपए का है, क्या कॉस्ट करता है वो मुझे। सो आप जब टाइम को इस इनकम से कनेक्ट कर देंगे, यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम। बिकॉज क्लाइंट हमारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, एवरीबडी नोस। लेकिन जिस दिन हमने अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्लाइंट अपने आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज हम उसी हिसाब से काम करेंगे। So always divide your monthly income with number of hours you worked. And when you have number, maybe 500 rupees, maybe 5,000 rupees, maybe 50,000 rupees per hour. And send, जब कोई मालूम पड़ गया कि यार मेरा 1 घंटा 5,000 रुपए का है, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आपने आधा घंटा ऐड कर दिया अपनी लाइफ में, तो आपने इनकम मल्टीप्लाई कर दी। तो स्टार्ट योर डे एटलीस्ट एट 9 o'clock, और जल्दी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने पूरे दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, टू पार्ट्स। So when you start your day at 9 o'clock, 2 o'clock is the hard stop. So before 2 o'clock and after 2 o'clock, of course, lunch is there. So 1:30 to 2:30 should be the lunch time. Lunch अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, because in our industry again there is no defined timeline for all these lunch and of course leisure time, because we actually work with the flow। जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती हैं, जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं, मीटिंग्स आती हैं, so we have to decide like ways। But अगर आप दिन को आप दो पार्ट डिवाइड कर दीजिए, 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock एंड आफ्टर 2 o'clock। इसके साथ ही साथ फर्स्ट हाफ इज फॉर योर ऑफिस वर्क, बिकॉज योर माइंड इज फ्रेश। फर्स्ट हाफ इज योर ऑफिस वर्क, सेकेंड हाफ इज फॉर द फील्ड। स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। इफ यू आर गिविंग योर कंप्लीट डे इन द ऑफिस तो भी गलत है, एंड इफ यू आर गिविंग योर 100% डे ऑन द फील्ड तो भी गलत है। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर कोई स्पेसिफिक मीटिंग है जिसमें पूरा दिन निकल गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। दैट इज अ केस टू दैट इज अ केस। आई कैन नॉट कंपेयर अ केस विद अ डेली स्केड्यूल, बट यू हैव टू फॉलो दिस। अगर आपका पूरा दिन ऑफिस में निकल रहा है, आप ये मान के चलेगा कि आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, अपने पूरे दिन को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। आधे दिन से ज्यादा ऑफिस में अगर आप बैठे हैं, आप मान के चलेगा यू आर किलिंग योर बिजनेस। This business, realtors, real estate business. So you have to divide your day in two parts. One is for office day, second half is for the field. Now, what we have to do in the first half? Basic things. I'm not adding anything जो हमको नहीं पता। हमको ये सब चीजें पता है, हम चीजें फॉलो करते हैं, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कुछ भी इसमें से मिस हो रहा है तो वो मैं आपको याद दिला दूं। जैसे कि आपने जब दिन शुरू किया तो अपने लास्ट डे को रिव्यू करिए, पेंडिंग टास्क को स्टडी करिए, सारे फॉलोअप क्लाइंट्स के को एक बार लिस्ट देखिए, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं मुझे फॉलोअप लेना है, आज की मीटिंग्स कौन कौन सी हैं। प्रमोशन एंड मार्केटिंग ओवर व्हाट्सएप एंड ईमेल, देयर इज समथिंग व्हिच यू शुड डू बिफोर 11 o'clock एवरी डे। एक व्हाट्सएप प्रमोशन मैसेज, एनीथिंग, बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, रियल एस्टेट नीड को लेके हो सकता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैंने इसमें एक अलग से सेशन लिया है, आई रिपीट द सेशन अगेन, कि एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, हमारी पर्सनल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। मैं उसको अगले 2-3 सेशंस के अंदर फिर से शुरू करूंगा। सो दैट एक क्रिएटिव, एक इनिशिएटिव आपका फर्स्ट हाफ 11 बजे से पहले हो जाना चाहिए। एक पोस्ट ओवर सोशल पेजेस, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, एक्स, जो भी आप यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं तो सभी जगह, बट एक पोस्ट, एक पोस्ट वो आपकी
पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोफेशनल कोई प्रोजेक्ट का कैंपेन है या फिर कोई स्पेसिफिक लीड जनरेशन एक्टिविटी है, नो। उस पे भी मेरा एक सेशन है, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा कि सोशल पेजेस को यूज कैसे करना है। सो वन पोस्ट अ डे यू शुड डू, एंड दैट विल बी अ मिक्स ऑफ योर पर्सनल, प्रोफेशन, achievements, and many more. I'll do a session again on this topic. 30-minute learning session over YouTube Max Center and YouTube or Max Center. So we have thousands of trainings at Remax Max Center, Remax University, thousands of trainings, sorry, lakhs of trainings at Remax Max Center. 30 minute का छोटा सा topic, 20 minutes, 15 minutes, 25 minutes. There are many meetings जो कि less than 30 minutes की हैं, वो आप जरूर लीजिए। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरे से रेलेवेंट है, प्लीज डू। कई बार आपको लगेगा कि शायद ये ट्रेनिंग बहुत बोरिंग थी, शायद ये ट्रेनिंग इतनी काम की नहीं थी, बट ट्रस्ट मी, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ जरूर होता है जो आप लेके जाते हैं। आई आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, एनी ट्रेनिंग, एनी मीटिंग विल गिव यू समथिंग। इसके साथ ही साथ रीमैक्स के ट्रेनिंग सेशंस, जो भी ट्रेनिंग सेशंस स्केड्यूल्ड है उसके दिन के, उसको आप प्लान करिए। फर्स्ट हाफ में कोशिश करिए कि ऑफिस से बाहर ना जाना पड़े। फर्स्ट हाफ में कोशिश करिए कि जितना भी दिन का काम है, जो कि पेपर वर्क, एक्सेल शीट्स, मे बी पावर पॉइंट्स, ऑनलाइन मीटिंग, जितना काम हो सकता है उसको आप ऑनलाइन या ऑफिस टाइम में ही क्लोज करिए। आप ये मान के चलेगा कि मेरा ऑफिस टाइम 2 बजे खत्म हो जाएगा, 2 बजे के बाद मैं ऑफिस में नहीं हूं, तो कोई भी ऐसा काम जो ऑफिस से कनेक्टेड है उसको 2 बजे से पहले खत्म कर दीजिए। और आपके पास बिल्कुल आप क्लूलेस होने चाहिए कि यार मैं क्या करूं, आफ्टर 2 o'clock मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब मैं क्या करूं। तो 2 o'clock के बाद क्या करना है उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सेकेंड हाफ में आप कुछ 5 लोगों से बात करिए, आपके फोन बुक से या सोशल प्रोफाइल से। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ढूंढना शुरू करेंगे फोन को हाथ में लेके कि आज किससे बात करूं, किससे बात करूं, यू विल हैव अ पर्सन जिससे आप फोन पे बात कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट कॉल, 45 मिनट, 45 सेकेंड कॉल, और मे बी 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, डिपेंड अपॉन योर कंपनी। जस्ट अ जनरल कॉल कि यार क्या चल रहा है, यार क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ पर हो, मिलते नहीं हो, मुलाकात नहीं हुई, वगैरह वगैरह, जो भी जिस भी तरीके की आपकी उनसे केमिस्ट्री है, जिस भी तरीके की आपकी रिलेशनशिप है। बट 5 न्यू पीपल एवरी डे, एंड ट्रस्ट मी, जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ये 5 नहीं, ज्यादा लोग आपके प्रोग्राम में और ऐड होना शुरू हो जाएंगे, बट 5 न्यू पीपल जिनसे आपको 1, 1.5, 2, 3, 4 मिनट, डिपेंड अपॉन योर रिलेशनशिप विद द पर्सन, आप उससे कम्युनिकेट जरूर करिए। एंड बिलीव मी, ये बहुत पावरफुल है। इसमें एक चीज जरूर ऐड करनी है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना जरूर है, बातों बातों में ऑफकोर्स, कि वो भी जब आप पूछेंगे कि क्या चल रहा है तो वो भी पूछेगा कि क्या चल रहा है। तो जो आपसे वो पूछेगा क्या चल रहा है तो आप जरूर बताइए। एंड बिलीव मी, जस्ट स्पीक अबाउट very good positive things about real estate. The struggle you have, the challenges you have, you will only solve it, nobody will solve it, you know this। तो कोई बंदा हेल्प नहीं करने वाला आपकी, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करेंगे तो पॉजिटिविटी को देखकर लोग आपके पास आएंगे जरूर, कि यार दिस इज द पर्सन जिसके साथ मुझे रियल एस्टेट की बात करनी चाहिए। ही इज वेरी एंथुजियास्ट, ही इज वेरी नॉलेजफुल अबाउट रियल एस्टेट एंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड अस। सो ट्रस्ट मी, ओनली स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, your industry, your profession, your circle, and like whatever you're discuss, just discuss positive things. Second, invite them टू योर ऑफिस फॉर मीटिंग, फॉर अ कॉफी, जस्ट अ जनरल डिस्कशन। हो सकता है कि वो बंदा आईटी इंडस्ट्री से हो सकता है कि वो डॉक्टर हो सकता है कि वो सीए हो सकता है वो किसी और बिजनेस में हो, बट आप उनसे एक मीटिंग जरूर करिए। जब 5 लोगों से बात करेंगे, 2 लोग आपसे मीटिंग का टाइम जरूर लेंगे, चलो यार मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया मुलाकात नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया बैठे नहीं है, बहुत टाइम हुआ लंच डिनर नहीं किया साथ में, यार चल एक कॉफी पी लेते हैं साथ बैठ के। एंड प्लीज डू दिस जब भी टाइम मिले। बहुत ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं है, 4 घंटे की मीटिंग नहीं बोल रहा हूं, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, मैक्सिमम एन आवर, पर आप इस मीटिंग को जरूर रखिए। कनेक्ट विथ योर 3 ऑफ योर ओल्ड क्लाइंट जिन्होंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी हो। याद रखना है चीज को, आप सबकी लाइफ में क्लाइंट्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉपर्टी बायर्स हैं। 3 लोगों जो पुराने प्रॉपर्टी बायर्स हैं, हर रोज करना है ये, उनसे एक बार बात जरूर करिए। फोन लगाया नहीं उठाया, व्हाट्सएप ड्रॉप किया कि सर हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ, आई सोल्ड अ प्रॉपर्टी टू यू 2 years बैक, 1 year बैक, 1.5 year बैक, 5 years बैक, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू आर डूइंग, आर यू एंजॉइंग योर प्रॉपर्टी, एटसेट्रा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस। बट प्लीज कम्युनिकेट फोन कॉल पे, याद रखना इस चीज को,
पहली कोशिश फोन कॉल पे, अगर फोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप, बट प्लीज schedule दिस फोन कॉल एवरी डे विथ 3 of your old clients। और अगर आपके पास बहुत सारे ओल्ड क्लाइंट्स नहीं हैं तो 3 ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जिन्होंने प्रॉपर्टी आपसे नहीं खरीदी, जिन्होंने आपसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करना बंद कर दी या फोन उठाया नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, उनसे बात करिए। बट 3 ऐसे लोग जो रियल एस्टेट की डील से कनेक्टेड हो, उनसे जरूर बात करिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने ऑफिस से निकलिए और अपने नेटवर्क में किसी से मिलिए। वो नेटवर्क आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका पुराना क्लाइंट हो सकता है, कोई ब्रोकर या एजेंट हो सकता है, कोई डेवलपर का एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डेवलपर हो सकता है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय या एजेंट हो सकता है, बट अपनी इंडस्ट्री के किसी एक बंदे से जरूर मिलिए। कम से कम एक मीटिंग, आइडियल इज 2। बट आप जब ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली प्लान करके चलेंगे कि हाँ यार, मैं इस डेवलपर के पास जाता हूँ, उस डेवलपर के पास मेरा एक बंदा है जिससे मेरी अच्छी बातचीत है, जस्ट गो एंड मीट हिम। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे से ज्यादा की मीटिंग मत रखिए। आधे घंटे बाद उस बंदे को ये बोल के जाइए कि यार मेरी एक और मीटिंग है, आई एम गोइंग। शायद आपकी कोई मीटिंग ना हो, शायद आप उसके बाद बाहर जाके गाड़ी में ही बैठने वाले हो, बट आधे घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, इससे ज्यादा की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। Trust me, when you start valuing your time, when people start seeing, yeah, you are busy in your profession, you are busy in your meetings, people start communicating with you more. आपसे वो ज्यादा बात करेंगे, बिकॉज इफ यू आर बिजी मीन्स यू आर सक्सेसफुल। इन आर इंडस्ट्री इट इज वेरी सिंपल। अगर आप एज अ रियल्टर, एज रियल एस्टेट इंडिविजुअल, अगर आप बिजी हैं, मतलब आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में या तो बंदा सक्सेसफुल है या फिर बंदा इस इंडस्ट्री से बाहर है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। और अगर वो सक्सेसफुल है तो बहुत बिजी है, बहुत काम है उसके पास। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो बिल्कुल फ्री है। तो दोनों में से एक रास्ता ऑप्ट करना है, तो आपको जो रास्ता है वो सक्सेसफुल रास्ता ऑप्ट करना है। एंड एटलीस्ट एक वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियोस आते हैं हमारे मतलब प्रोजेक्ट्स के, रियल एस्टेट के, कोई भी एक वीडियो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट का कोई भी वीडियो, कोई नया लॉन्च आया है, बड़े सारे डेवलपर्स अपने अपने टीजर्स निकालते हैं, नए नए लॉन्चेस की वीडियोस निकालते हैं। एक वीडियो कम से कम, मुझे लगता है कि आप सब देखते होंगे, बट अगर नहीं देखते हैं तो एटलीस्ट 1 वीडियो पर डे ये जरूर करिएगा। इससे आपको नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में मालूम पड़ेगा, नए नए लॉन्चेस के बारे में पता चलेगा, नए इनिशिएटिव्स के बारे में मालूम पड़ेगा, एक नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी। एक वीडियो अगर आपने रोज देखना शुरू कर दिया किसी भी नए लॉन्च का, ट्रस्ट मी, 15-20 डेज के बाद में आपके पास में इतना ज्यादा कंटेंट होगा डिस्कशन का। बट इसको एक प्रोसेस बना दीजिए कि एक वीडियो पर डे मुझे जरूर देखना है। वो 2-3-4 मिनट का हो सकता है, गाड़ी में आप बैठे हैं, 2-3 मिनट का वीडियो देख लिया, चलते चलते देख लिया, ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट, 4 मिनट का वीडियो होते हैं, इससे बड़े टीजर्स नहीं होते कभी भी। वो वीडियो जो नए लॉन्चेस रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, उसी को देखिए। सो अगेन, द सेम प्रोसेस रिपीट, 6 days a week, यही प्रोसेस रिपीट करना है। ऑफ कोर्स कोई क्लाइंट की मीटिंग है, कोई डिस्कशन है, ऑफ कोर्स वो स्केड्यूल आपका बिगड़ेगा, बट जिस दिन आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है, आपको फर्स्ट डे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, उसमें आपको डिवाइड करना है और उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। Sorry. So there are few events to follow. There are few events in February and March, which Remax are organizing across the country. जिसमें अजीजी दुबई के कुछ इवेंट्स हैं जो कि हैदराबाद और अहमदाबाद में हैं। डेट्स विल शेयर विथ यू, आई गेस उसके डेट्स आपके पास आ चुके हैं। इंडिया इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो, जो कि एक होटल 101, एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दुनिया भर में, उनके अहमदाबाद में और बैंगलोर में 2 प्रॉपर्टी इवेंट्स हैं। यूजन इंफ्रा गोवा का हैदराबाद में एक प्रॉपर्टी इवेंट है। इसके साथ जीएचडी इंफ्रा गोवा के 10 इवेंट्स हम स्केड्यूल कर रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर, जो मल्टीपल सिटीज के अंदर होंगे। तो 10 डिफरेंट सिटीज, 10 डिफरेंट इवेंट्स। और एक और डेवलपर है दुबई के, उनसे एक ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेज पर है। सो वंस वी हैव समथिंग इन हैंड, विल हैव 2 इवेंट्स एंड देन फॉलो अप इवेंट्स उसके बाद होंगे, जो कि पुणे और दिल्ली में होंगे। सो विल शेयर द स्केड्यूल, योर पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, दीज इवेंट्स आर फॉर यू। आपके लिए ये इवेंट्स रखे हैं, इन इवेंट्स को ज्यादा से यूज करिए। इस इवेंट को आप यूज कई तरीके से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेल्स इज फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि हमें करनी है। सेल्स के अलावा अगर बाई चांस आपके पास में कस्टमर्स नहीं है या कस्टमर्स कम है या किसी कारण से कस्टमर आपका इवेंट में नहीं आ पाया, इनवाइट योर अदर कंपनीज एसोसिएट, इनवाइट योर अदर ब्रोकर्स, अदर चैनल, अदर फ्रेंड्स जो कि आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है। ट्रस्ट मी, इन इवेंट्स को देख के वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यार ऐसे इवेंट्स मैं भी करूं, ऐसे इवेंट्स में मैं भी पार्टिसिपेट करूं। सो ट्रस्ट मी, यू हैव टू डू दिस। आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, इनवाइट मैक्सिमम पीपल। शायद वो क्लाइंट प्रॉपर्टी बायर ना हो, शायद उसने कोई प्रॉपर्टी की इंक्वायरी भी नहीं की हो, बट आप उसे ये बोल सकते हैं कि यार एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो है, एक दुबई का शो है, एक गोवा का शो है, जस्ट कम एंड सी।
आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर्टी बाय करनी है, हाथ पकड़ कर चेक साइन नहीं कराऊंगा, बट आके एक बार देखोगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इस तरीके से एटलीस्ट 3 से 4 क्लाइंट्स को या 3 से 4 इंडिविजुअल्स को इन इवेंट्स में जरूर बुलाइए। And based upon the response I receive, I'll schedule more and more events this year. I have a plan for at least 150 events for this year. So आप ये मान के चलेगा कि हम हर हफ्ते इवेंट्स कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड अपॉन यू कि कितना आप उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कमिंग सून, रीमैक्स समिट, दुबई स्टडी टूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है दुनिया की, जिसमें इंडियंस 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। And why we are not doing this? Because we are not aware of it. Maybe we are not having knowledge of it. So 10th to 12th of April एक स्टडी टूर प्लान है। आप अपने रेस्पेक्टिव ब्रोकर ओनर्स को अपने कंफर्मेशन दे दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ दुबई, of UAE. Complete launches. You will have the knowledge of every project on your tips. This is my guarantee. आपको 10 से 12 तारीख 3 दिन पूरे चाहिए। 9th को पहुंचना होगा, 13th का एग्जिट होगा। आप ज्यादा स्टे करना चाहे रुक सकते हैं, जल्दी पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं, पर 10th to 12th 3 दिन मुझे पूरे चाहिए, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। उसमें मैं पूरा दुबई कवर करूंगा, जिसमें पूरा साइट विजिट्स, मीटिंग्स, डेवलपर ऑफिसेस, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग, लॉट्स ऑफ लर्निंग्स। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर।